अरे वो संदूक था। It was just अरे a आपके अंदर तो जीवित यीशु रहता है। कलीसिया, ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं। church. This is the time we stand in His gospel. और सब आपने देखा है जिस दिन हम ले हैंड करते हैं क्या होता है, बाहर पूरा लॉन में जगह नहीं थी, गेट में जगह नहीं थी, 1500 लोग बाहर चले गए। You see, when we do a lay hand service, there are so many people outside in the lawn. There was no space in the facility. That tells you why the church is like that. ये हमें बताता है कि कलीसिया ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्हें वचन नहीं चाहिए, Because they do not want the word. उन्हें ले हैंड चाहिए। They want a lay hand. ठीक है, ले हैंड ले लो। ठीक है, take the lay hand. एंटीबायोटिक खा के तुम डिसाइड करो, जिंदगी भर एंटीबायोटिक खाओगे, फिर बीमारी आएगी, फिर ऐसे ही जीना है तो जियो। You decide if you want antibiotic and then again get sick and take an antibiotic again. That's how you want to live all your life? या स्रोत को बदल दो। Or you can change the source. आमीन। आत्मिक मलयुद्ध असली में जो गलत झूठ हमने शैतान के विश्वास किए हैं उनको रिप्लेस करना है, उनको हटाना है परमेश्वर के वचन के सत्य से। True spiritual warfare is when you remove the lies that you have received from the devil through the word of the living God. कई मसीह हैं, घर पे अकेले हैं, Many believers, they are alone at their house थोड़ा पत्ता हिला, and a leaf shook, थोड़ा पंखे से पेपर हिला, a paper moved because of the fan. हुई 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 हो गया। So now they're afraid. अंधेरा हुआ It got dark. तो सबसे पहले चेतना कहाँ जाती है? हाँ, काला साया खड़ा है। The first awareness they have is there's a dark shadow. ठीक है, काला साया खड़ा है, मान लिया मैंने, काला साया खड़ा है वहाँ Okay, पे है, मान लिया। I believe it, there's a dark shadow. अरे तो यीशु तो अंदर ही है ना। That Jesus is still inside you. लाइट गई और अंधेरा हो गया तो यीशु थोड़ा ना छोड़ के चला गया। अरे वो जो ज्योति है वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। If there was dark and if it got dark outside, the one who is called the light is still living in you. कि यीशु मसीह ने कहा ओह यार लाइट चली गई थी भाई, मैं थोड़ा डर गया था, मैं स्वर्ग चला गया था। So Jesus said, "Oh, there was no light, so I also got afraid and I went to heaven." अरे अपने सोचने के नजरिए को बदल डालो। Change the way you think. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You are the temple of the Holy Spirit. पुराने नियम में जब जो वाचा का संदूक था वहां पे एक देवता था, उनका नाम, जिसका नाम था डेगोन, जिसकी वो आराधना करते। In the Old Testament, we read about a temple of the god they worship called Dagon. और वहां पे उसके मंदिर के अंदर संदूक रख दिया। And they kept the Ark of the Covenant inside his temple. संदूक में क्या था? What was inside the 10 Ark? आज्ञाएं, The Ten मन्ना Commandments, और Manna, एरन की रॉड। and Aaron's rod. ओके, ठीक। पुराने नियम में वो रिप्रेजेंट करता था परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी उपस्थिति को। In the Old Covenant, it represented God's glory, His वहां रख presence. दिया, So they kept it there चले गए। and they left. जब सुबह आए In the morning when they came, तो देखा डैगन की मूर्ति टूट के सर के बल उसके आगे गिरी हुई है। and they saw that the statue of Dagon fell on its face and it broke. अरे वो संदूक था। It was just अरे an ark. आपके अंदर तो जीवित यीशु रहता है। The living Jesus lives inside of you. कलीसिया, ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं Church, this is the time we stand in His gospel और समझ जाएं कि असली सुसमाचार क्या है। and understand what true gospel really is. आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। I'll give you another example. बुक में बहुत सारे, The book has many examples. थोड़े से I'll give you some. सोचो एक व्यक्ति पार्क में बैठा है, Imagine a man is sitting in the park. उसके पास गन है। He has a gun. यूएस में आप गन ले सकते हो आराम से, In US, you can easily buy guns. तो यूएस में हो So the guy is in US. गन, He has a gun. पार्क में बैठा है, बेटा बगल में खेल रहा है। His son is playing right next to him. एक वैन आई, Van came. अचानक से रुकी, दरवाजा खुला, The door opened. मास्क पहन के 4 लोग बाहर आ गए। Some 4 people came wearing mask. बच्चे को पकड़ा, Took the kid. वो चिल्ला रहा है, The child is पापा मुझे screaming, बचाओ, पापा बचाओ। "Dad, save me, save me."
और व्यक्ति कुछ नहीं करता। and the guy does nothing. उस बच्चे को उठाकर उन्होंने वैन के अंदर फेंका, They kidnap the kid, throw him in the van, वैन स्पीड से चली। and the van runs off. ये व्यक्ति गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है This man got so angry and went to the police station और उनसे कहता है and tells them, मेरा बेटा किडनैप हो गया, my son got kidnapped. तुमने क्यों नहीं कुछ किया? Why didn't you do anything? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोर्ट में चला गया केस। So the case goes to the court. सीसीटीवी था कैमरा वहां पे पार्क, They had a CCTV camera in the back. फुटेज निकाली गई, They got the footage out. जज ने फुटेज देखी, The judge sees the footage. इसके पास गन थी, He had a gun. 4 लोग आए, 4 people came. इसने कुछ नहीं किया। He did nothing. He was charged as guilty of that kidnapping। तो उसको उस किडनैपिंग में दोषी ठहराया जाएगा उसके लिए। क्यों? Why? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। Because he did not use what he had. जब आप यीशु में आए, When you came to Jesus, आप कीड़े, आप प्रभु हम कीड़े, oh, we are worm, Lord, we are nothing. फॉल्स ह्यूमिलिटी से नफरत है परमेश्वर को। God hates false humility. रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, हाइपर रिलीजियस, वो ऐसी फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। Hyper religious people उन्हें show लगता है such कि fake ऐसा humility. करके हम ऐसे खुद, ओ खुदावन हम तो नाली के कीड़े हैं खुदावन। And they think by this God will be pleased. Oh Lord, we are a worm. Heaven's access is shut। स्वर्ग का जो प्रवेश है उनके लिए बंद हो जाता है. इस ड्रामेबाज को साइड कर दे। Put this dramebaz somewhere else. उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है। He knows he's acting. मतलब परमेश्वर ने नाली के कीड़ों को स्वर्गीय स्थान में बिठा रखा है यीशु के साथ। So God has put worms in the kingdom of heaven on the throne. अरे जानो कि तुम कौन हो मसीह में। First, know who you are in Christ. हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है मुझे बताइए। How do you find out the value or the worth of everything? अगर मैं आपके जूते देखूं और मैं कहूं ये जूते कितने के हैं, आपको कैसे पता वो कितने के हैं मुझे बताओ। If I see your shoes and ask you the cost, how did you know the cost? तो प्राइस टैग अभी लगा है क्या जूते में? Is there still the price tag on it? हाँ, आप क्या जितना दाम चुकाया जाता है उसके लिए ये बताता है उस चीज की कीमत कितनी है। The amount of money you paid to get those shoes tells you the worth. एक जूता 200 रुपए का भी आता है You can buy और a आज shoe ऐसे for भी 200. जूते हैं जो 1 लाख के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते Today you have shoes worth 1 lakh, दोनों 2 lakh. जूते हैं। Both are shoes. मगर अगर एक जूते के लिए एक व्यक्ति 3 लाख रुपए दे रहा है, यानी वो जानता है कि ये जूता इसकी इतनी कीमत है। But if a man is paying 3 lakh to buy a pair of shoes, he knows that these are worth 3 lakh. जब मानव जाति पाप की बंधुआई में चली गई When mankind went under the और slavery of परमेश्वर sin, को मानव जाति की कीमत चुकानी थी, and God had to pay the price for तो mankind, सोना और चांदी से भी नहीं चुका सकता था। He could not have paid it with तो gold उसने and silver. सबसे कीमती चीज, बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ, मगर परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे गए हो। अरे अपना दाम समझो कि आप कितने कीमती हो। You are not saved by gold and silver which perishes, but by the blood of God Himself. Find out, get to know how precious you are to Him. There are many believers who got saved and they'll go to heaven, बहुत से विश्वासियों ने उद्धार पाया, स्वर्ग भी जाएंगे, but because their mind remains unrenewed, they will live as slaves on this earth. लेकिन क्योंकि उनका मन कभी नया नहीं हुआ है, वो नौकरों की तरह, दासों की तरह जिएंगे पृथ्वी पर। अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसका बेटा ले गया, If that man did nothing and his son was kidnapped, तो पुलिस उससे पूछेगी तूने क्यों नहीं किया जब तेरे पास गन था। the police would question him, why didn't you do something when you had a gun? जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप बोले प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यीशु बोलेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे। If the devil tries to bring sickness against you or your children and you do nothing and you say, Lord, why did you do this to me? He will say, why did you not use the authority that I gave to you?